अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना मौज़म है और आज हम मौजूद हैं पीसी मुज़फ़्फ़राबाद में, जहां पे द डायबिटीज़ सेंटर और ICRC के इश्तराक से डायबिटीज़ मैनेजमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। मैं तो इसको एक्सीलेंट कहूँगा बिकॉज बट एज यू नो कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेनिंग। 10 में से 10 नंबर दूँगा। इस हवाले से तो हमें तो बहुत अच्छी लगी है, इस तरह की होनी चाहिए ट्रेनिंग ताकि अवेयरनेस हो। बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े क्वालिफाइड हैं। मेरे तो 10 में से 10 ही दूँ जी, 10 आउट ऑफ 10 देंगे क्योंकि बहुत अच्छी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए, बहुत कम होती हैं। It's compassionate and value-based treatment to our patients, and our mission is to be recognized as a global leader in improving the lives of people with diabetes on subsidized rates. Today, we have gathered here to enhance our knowledge and learn something about the training provided with collaboration of the International Committee of the Red Cross, ICRC. ICRC needs no introduction. The work of the ICRC is based on the Geneva Convention of 1949. Their additional protocols, its statutes, and those of the International Red Cross and Red Crescent movement, and the resolutions of the international conferences of the Red Cross and Red Crescent. The ICRC is an independent, neutral organization ensuring humanitarian protection and assistance for victims of armed conflict and other situations of violence. It takes action in response to emergencies and at the same time promotes respect for international humanitarian law and its implementation in national law. Before moving on, I'd like to introduce our valuable speaker, Dr. Abdul Hafiz, who is currently working as a medical director at the Diabetes Center, Islamabad. Dr. Abdul Hafiz got his MBBS degree in 1988. He got his FCPS in 1999. He became a fellow from Ireland in 2002. He got his diploma in TQM Health American University from Cairo, Egypt. He has a vast experience in diabetes management and diabetic foot-related complications. He has also been working with the Ministry of Health in Saudi Arabia for the longest time. I'd like to welcome Dr. Abdul Hafiz on stage. Definition is diabetic foot syndrome. We all doctors, we are knowing that what is the meaning of syndrome. Syndrome means which I understand that the thing which we are not clear. What is its pathophysiology? What's its management? How to deal with it? So it is something is hidden behind it. So why it is very rightly said, it's a diabetic foot syndrome, which is defined as a foot that is affected by ulcerations. हम लोगों को जो प्रोजेक्ट मिला है ना, वो आपके पूरे सिस्टम को ऊपर उठाने के लिए मिला है, ठीक है। तो पहले हमने आपके कैचमेंट एरिया के अंदर हमने ट्रेनिंग करवाई LH20 की, ताकि वो जाके पेशेंट्स के फीट देख सकें और देख सकें कि नहीं इसको लगता है कोई प्रॉब्लम है तो ये रेफर होना चाहिए डॉक्टर को। इन कोलैबोरेशन विद ICRC और द डायबिटिक सेंटर से के तावन से जो हमारे यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन हो रहा है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द डॉक्टर्स ऑफ अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। दिस इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्टेप जो हमने स्टार्ट लिया था कि डायबिटिक फुट यूनिट हमने स्टार्ट करना है और एयरिंग ह्यूमैनिटी को इसका कोई फ़ायदा पहुँचाना। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट, विल नॉट से दिस फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ पार्ट ऑफ दैट हमारी कैंपेन जो है उसका हिस्सा है। दिस इज़ अ गुड स्टेप। हमारे जो स्पीकर हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़, वो डायबिटीज़ सेंटर के मेडिकल हेड हैं और फुट सर्जन हैं। आइए उनसे चंद सवालात पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज की ट्रेनिंग में वो यहाँ पे डॉक्टर्स को क्या सिखाना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि आज जो हमने 1 डे ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट किया है डायबिटिक फुट ट्रेनिंग मैनेजमेंट के ऊपर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से, आप मुझे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो मौजूद डॉक्टर्स हैं उनको आज हम यहाँ क्या सिखा के भेज रहे हैं और हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस ट्रेनिंग से कि वो उसका आउटपुट क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। मैं ये समझता हूँ कि TDC हॉस्पिटल जो है वो सिर्फ पेशेंट मैनेज नहीं करता। हम लोगों का एक प्रोग्राम है कि उसमें हम वेरियस जगह पे जाके जो है डॉक्टर्स को ट्रेंड भी करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारा जो है यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में जो एम्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको बेसिक ट्रेनिंग देने के लिए ये सब कुछ अरेंजमेंट किया गया है। और ये सेशन हमारा जो स्टार्ट हुआ है उसमें
हम उनको बेसिक जो काजेज़ हैं इसके और जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इशू एक्चुअली क्या है कि यहाँ के जो पेशेंट इस्लामाबाद आते हुए उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस पड़ जाते हैं, तो वाई नॉट के हम उनको जो है उनके फुट डोर पे जो है वो ट्रीटमेंट का कुछ अरेंज करके दें कि बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ के डॉक्टर्स दे दें, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो फिर वो हमें रेफ़र भी कर सकते हैं केसेस। ठीक है, थैंक यू सर। सर मुझे बताइएगा कि आपको लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं वो टाइम एंड अगेन होनी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लिए? आपको लगता है कि हमारे डॉक्टर्स को अप टू डेट रहना चाहिए आजकल जो भी मेडिकल साइंसेज में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, स्पेशली रिलेटेड टू फुट केयर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जो है वो डिफरेंट डिजीज़ के स्पेशलिस्ट सेंटर बनते जा रहे हैं। फुट केयर जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें लोग जो है वो इतने ट्रेंड नहीं हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने ये सब कुछ अरेंज किया है कि उनको बेसिक ट्रेनिंग दें ताकि इस चीज़ को अवेयर कर सकें हम। और पेशेंट जो है वो जो इतना ट्रैवल करके और गाड़ियाँ किराए पे लेके इतना ख़र्चा करके उधर पहुँचते हैं, अगर उनको अपने घर पे यहाँ ट्रीटमेंट मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रेनिंग जो है उन डॉक्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है जो इस सब्जेक्ट को भूले बैठे हैं या जो प्रॉपर मैनेज नहीं कर सकते, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम ये एम्स के डॉक्टर्स को आज जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि पेशेंट के जो है ना प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो सके। जिस तरह के ये मतलब 1 डे वर्कशॉप्स हैं, बल्कि इस तरह कह सकते हैं कि रिफ़्रेशर कोर्सेज़ ही हैं, तो सीखने की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, रिफ़्रेशमेंट्स हैं हमारे जो हमने ऑलरेडी पढ़ा होता है या नई चीज़ें जो आती हैं उस हवाले से, और अल्टीमेटली फॉर द जो है पेशेंट केयर के लिए बहुत बेहतर है। और मैं यही समझता हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स या रिफ़्रेशर कोर्सेज़ जो भी आप इसको कहते हैं होने चाहिए। आप लोगों ने बड़ी अच्छी ट्रेनिंग कंडक्ट की है, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छा डायबिटीज़ के बारे में सब लोगों को आगाह किया है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उनको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए उनके बारे में, और जो डायबिटीज़ सेंटर का इफ्तिताह करेंगे एम्स में उसके लिए भी ये बड़ी अच्छी कोशिश है। हाँ, ये एक दिन की वर्कशॉप थी डायबिटिक फुट पे, तो माशाल्लाह बड़ी इन्फॉर्मेटिव थी ये वर्कशॉप। काफ़ी कुछ हमने इसमें गेन किया है, सीखा है। ट्रेनिंग बेसिकली हमसे रिलेटेड है, सर्जिकल रिलेटेड से, तो हमें तो बहुत अच्छी लगी है, मतलब क्योंकि पेशेंट्स का बर्डन जो डायबिटिक फुट के साथ में स्पेशली बहुत ज़्यादा होता है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स में, तो इस हवाले से तो हमें तो बहुत अच्छी लगी है। इस तरह की होनी चाहिए ट्रेनिंग्स ताकि अवेयरनेस हो। हम यहाँ पे डॉक्टर्स को डायबिटीज़ और उसकी फुट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आगाही देने के लिए मौजूद हैं, और उनका ये ख्याल है कि इस तरह की ट्रेनिंग्स जो हैं टाइम एंड अगेन होनी चाहिए और ये आजकल के डॉक्टर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी ICRC और डायबिटीज़ सेंटर मिल के इस चीज़ पे काम करेंगे और मज़ीद आगे आने वाले दिनों के अंदर हम और इस तरह की इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग्स जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। मेरी तरफ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।